Good afternoon, students. In the previous class, we discussed the objectives of the budget, government budget, and we have seen many objectives of the government budget. Government uses many tools, many instruments to manage the economy, its growth and development. So, budget is an important for the growth and development of any economy of any countries. Now we will see now structure and components of budget. So what are the structures and what are the key components, factors or the constituents unit of the budget, that we will now discuss. So meaning of budget, the objectives of budget, we are now knowing, we understood that, and in previous class we also discussed how to manage the inflation, deflation or situation of economic cycle, how to manage the economic cycle with the help of government budget. So that we saw, with the help of fiscal policy, how inflation can be controlled, how deflation can be controlled, how recession can be controlled, that we discussed. So now there are two components of budget. So when we talk about the components of budget, parts of budget, there are mainly, means it is broadly divided into two parts. One is budget receipts and second one is budget expenditure. क्योंकि budget is about management of revenue and expenditure. So whatever is coming from the public or from any other sources, and that revenues is spent on various sectors, on various streams, and that is done with the help of budget. So definitely it will be divided into two parts, two main components. One is the receipts that government is getting and second one is the expenditure, because budget is talking about this receipts and expenditure. तो यही दो कंपोनेंट्स इसलिए मेन है क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास में इनकम आएगा और फिर उसको जो खर्च करेगा, तो यही इसी के बारे में जो आपको बजट में दिया हुआ रहता है. So budget receipts, it has two parts, revenue receipts and capital receipts. और जो कुछ भी आपको रिसिप्ट गवर्नमेंट करता है उसका भी दो पार्ट्स होता है, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स. उसका बजट एक्सपेंडिचर जो है उसका भी दो पार्ट्स होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हम लोग ये देखिए कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट, budget receipts and budget expenditure. After that, budget receipts has two parts, revenue receipts and capital receipts. After that, budget expenditure has also two parts, that is revenue expenditure and capital expenditure. Now we will discuss all this one by one. चलिए सबसे पहले हम लोग बजट रिसिप्ट्स को डिस्कस करेंगे. बजट रिसिप्ट्स में जो आपको दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. और उसके बाद आपका बजट एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे. बजट एक्सपेंडिचर का जो पार्ट्स होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज बजट रिसिप्ट्स? बजट रिसिप्ट्स रेफर टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स of the government from all sources during the fiscal year. So budget receipts means all the receipts, all the money that is received by the government. From which source? From all the sources. कोई इसमें कोई ऐसा नहीं कि टैक्स मनी जो है वही नहीं, बल्कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो है, चाहे
दूसरा जो रेवेन्यूज है, फाइन्स है, तो वहाँ से जो आ रहा है तो ये सब उसमें इंक्लूड होगा। यानी कि जो भी टोटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के पास में आ रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का रिसिप्ट्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं बजट रिसिप्ट्स। ठीक है, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, वन फिस्कल ईयर। आपको मालूम है, हम जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। एज वी मेंशन इट हैज़ टू पार्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अब वन बाय वन दोनों को हम लोग देखते हैं। तो बजट रिसिप्ट्स हम लोग देख लिए। बजट रिसिप्ट्स रेफर टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। इट हैज़ टू पार्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स अब लोग देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों में डिफरेंस जो है कभी कभी आ जाता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें आपको थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन घुमा भी देता है, कहाँ घुमाता है ये आपको हम बता रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर which do not affect asset और liability status of the government। ठीक है, ये दो वर्ड को आपको याद रखना है। which do not affect asset और liability status of the government, यानी कि उस रिसिप्ट्स को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम लोग उस रिसिप्ट्स को बोलेंगे जो ना तो एसेट को प्रभावित करता है और ना ही लायबिलिटी स्टेटस को प्रभावित करता है। यानी कि गवर्नमेंट का जो एसेट है, जो संपत्ति है, जो वेल्थ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही गवर्नमेंट का लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। लायबिलिटी को आप सिंपल टर्म में इस तरह समझ सकते हैं कि यदि आप किसी से कुछ कर्ज लिए हैं तो उसको चुकाना पड़ता है, तो उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। यानी कि लायबिलिटी है, उसको बर्डन है चुकाने का, उसको रिपे करने का, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट से ना तो लायबिलिटी पे कोई असर पड़ता है और ना ही गवर्नमेंट का जो एसेट है, जो वेल्थ है, संपत्ति है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा। तो इस टाइप का रिसिप्ट को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये जो दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इसको माइंड में बिठा लेना है, याद रखना है। क्या क्या? दीज रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर में कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। यानी कि गवर्नमेंट को ये टेंशन नहीं रहता है कि हमको फिर रीपे करना है। हम जो रिसिप्ट लिए हैं, हम जो मनी लिए हैं, हम जो पैसा लिए हैं, मेरे पास में आया है, फिर उसको चुकाना है। तो ये बर्डन नहीं रहता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, ये लायबिलिटी नहीं रहता है। और दूसरा है, दिस रिसिप्ट डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो रिसिप्ट आता है, इससे गवर्नमेंट का जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, उसमें कमी नहीं होगा, उसमें कमी नहीं आएगी। तो ये आपको याद रखना है कि देयर इज नो लायबिलिटी एंड नो रिडक्शन। नो लायबिलिटी, नो रिडक्शन इन विच रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स उसी रिसिप्ट्स को बोलेंगे जहाँ पे नो लायबिलिटी एंड नो रिडक्शन। अब इसमें क्वेश्चन आपको पूछ देगा, कुछ एक एग्जांपल दे देगा। जैसे बाहर से गवर्नमेंट लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लिया है खर्च करने के लिए, तो ये कौन सा रिसिप्ट हुआ? ठीक है, या पूछ देगा क्या इसमें गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी है, यदि लायबिलिटी है तो ये कौन सा रिसिप्ट हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ या कैपिटल रिसिप्ट हुआ? तो ये सब जो आपको डिफरेंट टाइप्स से आपको क्वेश्चन देता है। यदि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, देन यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बाय एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। So therefore you will remember these 2 points। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं। नो लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे आपको स्लाइड में जो है आपको हम अलग से लिख दिए हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, टैक्स एक एग्जाम्पल है। रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट अनलाइक बोरोइंग्स डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटीज फॉर इट। आप जो टैक्स जो लेता है, आप जो इनकम टैक्स
पे करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, तो क्या गवर्नमेंट फिर आपको वो रिटर्न करता है इंटरेस्ट दे करके? नहीं। तो गवर्नमेंट को इसमें आपको चुकाने का रीपेमेंट नहीं करना पड़ता, रिटर्न नहीं करना है, इसलिए उसके ऊपर में कोई लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास में। तो टैक्स एक आपका एग्जाम्पल हो गया। तो टैक्स जो है कौन सा रिसिप्ट हुआ? टैक्स हो गया आपको रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स कौन सा रिसिप्ट हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में कोई लायबिलिटी नहीं है उसको रिटर्न करने का। और सेकेंड क्या? नो एसेट रिडक्शन। देखिए, नो एसेट रिडक्शन को आप सिंपल टर्म इस तरह समझ सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट डू नॉट लीड टू एनी रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एसेट, सो द गवर्नमेंट कैन नॉट शो इट्स अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ स्टैक, sale of stock in a public sector undertaking as revenue receipts because the stock sale resulted in reduction of its assets। अब देखिए, गवर्नमेंट का जो एसेट है उसमें रिडक्शन नहीं होना चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो जो स्टैक होता है, स्टैक का मतलब होता है पार्ट, जो कोई कंपनी का जो आपका पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है शेयर में। शेयर मार्केट आप सुने होंगे, शेयर जो आप सुने होंगे, अकाउंट्स में भी आप जो है इस वर्ड को सुने होंगे। तो जो कंपनी को आपको डिफरेंट पार्ट्स में, जो कंपनी का जो वैल्यू होता है उसको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैक, शेयर बोलते हैं। और उसको फिर बेच दिया जाता है, उसको कोई भी खरीद सकता है। तो यदि गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी, जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो कोई कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर का कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसका स्टेक, उसका शेयर को यदि गवर्नमेंट बेच दिया है और उससे मनी कमाया है, पैसा कमाया है, तो क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो है कंपनी का एक ठो पार्ट जो है उसको बेच रहा है, एसेट को बेच रहा है, तो रिडक्शन इन एसेट हुआ ना, ये जो है माइनस हो गया। एसेट में आपको रिडक्शन हुआ, माइनस हुआ, घट गया। या फिर मान लो कि कोई कंपनी जो है बेच दिया, गवर्नमेंट जो है रेलवे को मान लो बेच दिया, तो उससे रिटर्न हुआ, उससे पैसा आया, तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट में रिडक्शन हो रहा है। चलिए, तो ये आपको देख लिए। सो फॉर द गवर्नमेंट देयर आर टू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हम लोग देखें कि जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसका आपको उसमें कोई लायबिलिटी नहीं होता है और कोई एसेट रिडक्शन नहीं होता है। तो जो मनी आएगा कहाँ कहाँ से आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो आपको मनी आता है कहाँ से आता है? तो उसको हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स से जो पैसा आता है वो, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसा नहीं है कि केवल टैक्स से ही पैसा आता है गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, नहीं, बहुत सारे नॉन टैक्स सोर्सेस भी हैं, वहाँ से भी आता है। चलिए वन बाय वन अब हम लोग दोनों को देखते हैं। ओके, सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? हाउ मेनी सोर्सेस? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, या टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। अब टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है? रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, जीएसटी। तो ये सब आपको टैक्स रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। इनकम टैक्स, ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। कॉरपोरेशन टैक्स, ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। जो कंपनी का जो आपको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर में जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। और जो कोई इंडिविजुअल आदमी के ऊपर में जो आपको टैक्स लगाया जाता है, उसका इनकम के ऊपर में जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट टैक्स हो गया। जीएसटी क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये हाल ही में आपको आया है कुछ साल पहले, तो ये आपको इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। जीएसटी के बारे में आपको हम जो है डिटेल्स में बता चुके हैं कि एक जो है एक टाइप का आपको इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये आपको टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स विल बी कम इन टू कैटेगरी ऑफ व्हाट? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू देखो, दीज आर रिसिव्ड फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस, टैक्सेस के अलावा जो सोर्सेस है वहाँ से जो आपको मनी आता है। एग्जांपल फीस हो गया, कोई चीज़ का गवर्नमेंट फी लेता है, फाइन हो गया, ग्रांट्स हो गया। फ़ी आपको मालूम होगा कि फ़ी क्या होता है। जब गवर्नमेंट आपसे कोई फ़ी लेता है, जैसे आप
लैंड रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जब कोई ज़मीन आप बेचते हैं तो ज़मीन बेचने के बाद आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन का फ़ी लगता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ पे जो है जाने के बाद आपसे फ़ी लेगा, तो उसको वो कौन सा जो आपका हो गया रेवेन्यू, वो हो गया आपको रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। उसके बाद फाइन लगता है। बहुत सारे आपको पनिशमेंट जब यदि मिलता है आपको, इससे कोई भी, जैसे आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं और आप कुछ रूल्स को जो है आप ब्रेक किए हैं, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर कोई दूसरा टाइप का जो पनिशमेंट देता है, फाइन्स जो लेता है, वो हो गया। या फिर ग्रांट्स क्या होता है? ग्रांट्स हम लोग उस मनी को बोलते हैं जिसको रीपे नहीं किया जाता है, जिसको रिटर्न बैक नहीं किया जाता है। जैसे गिफ्ट हो गया, उसको रिटर्न बैक नहीं किया जाता। तो ग्रांट्स में गिफ्ट्स में आपको डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि यदि अर्थक्वेक आया इंडिया में या फ्लड्स आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अमेरिका से जो है आपको फंड आया, ठीक है, हेल्प के रूप में मनी आया, तो ये सब आपको ग्रांट्स के अंदर आपको आ जाएगा। उसके अलावा जो आपको कोई प्रोजेक्ट के ऊपर में ग्रांट्स दिया जाता है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट के बदले में जो है आपको ग्रांट्स मिलता है, यानी कि उसको रिटर्न नहीं करना है, उस मनी को हम लोग ग्रांट्स बोलते हैं। तो ये सब सोर्सेज से जो आपको मनी आता है उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में भी दो तरह से आपको रिसिप्ट आता है, दो तरह से पैसा आता है। पहला टैक्स से आता है जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब आ जाएगा, और दूसरा आपको नॉन टैक्स सोर्सेस है, जैसे हो गया फीस, फाइन्स, ग्रांट्स, etc. नाउ सी नेक्स्ट। अब हम लोग टैक्स रिसिप्ट की बात करते हैं। टैक्स रिसिप्ट किसको हम लोग बोलेंगे, टैक्स किसको बोलते हैं? सो व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? A tax is a compulsory payment made by an individual, household or firm to the government without anything corresponding in return. जी, आप टैक्स उस पेमेंट को, उस कंपलसरी पेमेंट को बोलते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है कि आपको मन कर रहा है तो आप टैक्स दीजिए और नहीं मन कर रहा है तो आप मत दीजिए। सभी पैसा को जो, सभी इनकम को आप जो अपना यूज कर लीजिए, अपने लिए रखिए, ऐसा नहीं है। ये कंपलसरी पेमेंट है। यदि आप टैक्स क्राइटेरिया में आप आते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट स्लैब्स दिया हुआ रहता है कि कितना से कितना इनकम तक जो है कितना टैक्स रेट रहेगा, कितना आपको देना है, और कितना से कितना तक जो है छूट है, ये सब आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ रहता है, और उसके अनुसार टैक्स जो है आपको पेमेंट करना रहता है। एंड विदाउट एनीथिंग कॉरस्पॉन्डिंग इन रिटर्न, और उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यदि हम टैक्स दे रहे हैं तो आप बोले कि टैक्स हम दे रहे हैं तो हमको उसके बदले में कुछ दीजिए। गवर्नमेंट को आप बोले कि हम जो आपको टैक्स दे रहे हैं, इनकम जो हम कमा के आपको दे रहे हैं, उसके बदले में हमको कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है, बदले में नहीं मिलता है। लेकिन बदले में मिलता है, आपको नहीं मिलता, आपको कलेक्टिवली मिलता है, क्योंकि आपका जो टैक्स मनी है उसका गवर्नमेंट जो है फाइनली एक्सपेंडिचर करता है, उसका यूज करता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो फाइनली या फिर पब्लिक वर्क्स के लिए, सोशल वर्क्स के लिए उसको यूज किया जाता है। तो आपको इनडायरेक्ट रूप में आपको रिटर्न होता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्टली आपको रिटर्न कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो टैक्स का हम लोग डेफिनेशन याद देख ली। इट इज़ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म। कोई एक आदमी, टैक्स केवल वही नहीं, केवल एक आदमी के द्वारा पे किया जाता है। एक हाउस होल्ड हो गया, एक फैमिली, एक फर्म हो गया, जो फर्म होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो भी आपको टैक्स पे करता है। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ टैक्सेस। Now this is a very famous one. We all know that there are two types of taxes, direct taxes and indirect tax. Direct tax हम लोग किसको बोलेंगे? These are those taxes whose final burden falls on that person who makes the payment to the government. Example, income tax. डायरेक्ट टैक्स हम लोग उस टैक्स को बोलते हैं इसका फाइनल बर्डन जो है, मीन्स पेमेंट, पैसा देने का जो बर्डन है, जो आपको लायबिलिटी है, वो डायरेक्टली उस आदमी के ऊपर में पड़ता है जो पे कर रहा है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल आपको हो गया इनकम टैक्स हो गया, यानी कि जो आपको इनकम कमाता है, जिसके पास में जो
मनी है, इनकम से जो आता है उसके ऊपर में जो टैक्स लगता है वो उसी आदमी को देना पड़ता है। वो कोई दूसरा जो है उसका बर्डन नहीं लेगा, दूसरा पे वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। जिसके पास में इनकम है, जिसके ऊपर में टैक्स लगाया गया, वही उसको पे करेगा। So now we'll discuss more of this direct tax and indirect tax in the coming classes. This is all about today's class. Thank you.